So, after a long tragedy in the life of David, Absalom, Shaul, kind of suffering, don't know what is happening in his life, पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी पर. परमेश्वर ने नियुक्ति किया, परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने करने का बोला, फिर भी यह समस्या आ रहा है. Praying, weeping, pleading, going through all this kind of situation. In chapter 18, word of thanksgiving. कौन सा समस्या से वो बाहर आया अध्याय 18 में? From which problem he came out? He got delivered. From the hands of enemies, particularly named Shaul. How he died? So, chapter 19, to have an introduction. After every problem, again, repetition about the creation. परमेश्वर का महाकार्य के बारे में, परमेश्वर का सृष्टि के बारे में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है. भजन संगीता 19 किसी ने पढ़ी है? The heaven declare the glory of God, and the sky above proclaim His handiwork. Day to day pour out spirit, and night to night reveal knowledge. There is no peace, nor are there words. Those voices not hear. They hear voice goes out to all the earth, and near one to the end of the world. And them he has set a tent for the sun. It's come out like a bridegroom, leaving his slumber, and like a strong man. इस भजन संगीता में लिखा है ना वो हनी के बारे में, वही है स्वीटर देन हनी. सो Psalm number 19 is a prayer or is a psalm after knowing about God in a deeper way, and this is an attribute or this is an explanation about the work of God, the righteousness of God, the wisdom of God, and who is God. समझ आया? भजन संगीता 19 में आप पढ़ के देखा था, ऐसे एक ट्यून ही है. It was also written by David, but he understood who God is. और गहराई में परमेश्वर के बारे में समझ लिया. He understood him in a deeper way, and here he is explaining about God and his nature and his character. ऐसा ही है ना भजन संगीता 19 है या नहीं? पढ़ के देखिए एक बार. The law of the Lord is perfect. मैं पढ़ रहा हूँ 7 से लेकर. So the psalmist understood about God in a deeper way, and this psalm maybe it has connection with Psalm number 18, क्योंकि हम किसी से कुछ पाने के बाद अरे ये तो ऐसा है ऐसा है करके उसके बारे में बहुत समझ कर जैसा हम बोलते हैं ना, वैसे ही परमेश्वर के बारे में दाऊद ने बोल रहा है. So Psalm 19 stands as the most profound and beautifully structured psalm in the Hebrew Bible. It speaks about the glory and wisdom of God, and it speaks about David as the author and has the theological depth of cosmological reflection. What is meant by cosmology? What is meant by cosmos? Cosmos, Greek word. Cosmos मतलब सर जैसे कि बोल सकते हैं कुछ ये दुनिया का नहीं कुछ बाहर के Nature, study of nature, cosmology. So ये भजन संगीता 19 पढ़ा था. You can see the the history of creation once again. For example, this was most common in the life and ancient history of Israel. Whenever they got something, they used to repeat the law, isn't it? उनके जीवन में कुछ अच्छा होने का समय नियम को रिपीट दोहराते थे.
First repetition happened in the book of Genesis. Deuteronomy. What is meant Deuteronomy? Vyavastha Vivaran. Then the second repetition took place in the book of Ezra Nehemiah. कब हुआ था? क्या बनाने के बाद हुआ था? टेम्पल बनाने के बाद रिपीटेशन हुआ था। मतलब इसका बीच में एक कहानी आता है, मतलब वो कहानी का सेम टू सेम नहीं है, लेकिन सोच के देखना, शाऊल के हाथों से बचाने के बाद अगेन दे आर रिमेम्बरिंग द वर्क्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के सारी बातों को याद करते हुए परमेश्वर को एक ट्रिब्यूट दे रहा है। व्हाट इज मीन बाय ट्रिब्यूट? श्रद्धांजलि, सम्मान देता है ना, सम्मान सम्मान दे रहा। मतलब ये जो परमेश्वर ने हमारे लिए इतना 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 सारे बातें किया करके उसको धन्यवाद की बातें बोल रहा है। ऑथरशिप गोज टू द हेडिंग सेज टू द चीफ म्यूजिशियन, टू द choir master, a psalm of David, the law of the Lord is perfect। परमेश्वर का नियम परफेक्ट है करके हेडिंग। The historical context of Psalm 19 likely falls within the early monarchic period where David became king and everything is all right and he is on the throne of king and he is happy and the nation is happy। Then they sang this song or then they prayed और इस भजन को गाया। मतलब दाऊद को वापस हो राजकी पदवी या राजकी पोजीशन में वापस आया। अभी सब कुछ ठीक है, तब इस प्रार्थना या गीत को, इस भजन का गाया होगा। देन लिटरेरी स्ट्रक्चर वर्सेस 1 to 6, द रेवलेशन ऑफ गॉड इन क्रिएशन विच मीन्स नेचुरल रेवलेशन। इस क्रिएशन को देखा तो हमको परमेश्वर का रेवलेशन के बारे में क्या समझ सकता है? पॉइंट नंबर 1, दैट इज रेवलेशन नंबर 1, नेचुरल रेवलेशन। सो दिस साम स्पीक्स अबाउट रेवलेशन। फर्स्ट रेवलेशन नेचुरल रेवलेशन, सेकंड रेवलेशन द लॉ ऑफ गॉड, दैट इज स्पेशल रेवलेशन। स्पेशल रेवलेशन अबाउट द लॉ ऑफ गॉड। दोज हु रीड बाइबल, दोज आर क्रिश्चियंस, वी ओनली नो। ए हिंदू या मुस्लिम डज नॉट नो, सो दैट कम्स अंडर स्पेशल रेवलेशन। सृष्टि के बारे में देखा तो दैट इज नेचुरल रेवलेशन। नियम के बारे में देखा तो दैट इज स्पेशल रेवलेशन, बिकॉज वी ओनली नो दैट थिंग। वी आर स्पीकिंग और स्पीचिंग अबाउट दिस लॉस टू द अदर पीपल। समझ आया? इस नियम हमको ही पता है, हम दूसरों के इस नियम के बारे में प्रचार कर रहा है। वर्सेस 12 to 14, द रेस्पॉन्स ऑफ द वर्शिपर। सो पर्सनल रेवलेशन, नेचुरल रेवलेशन, स्पेशल रेवलेशन मिलने के बाद हमारा रिप्लाई क्या है, वर्सेस 12 to 14 में लिखा है। समझ आया या नहीं आया? आफ्टर रिसीविंग नेचुरल रेवलेशन, after receiving the law of God, that is special revelation, a worshipper is giving the response to the given revelation, that is known as worship। What is mean by worship? इसका ट्रांसलेशन नहीं पूछा मैंने। What is mean by worship? Because after that you are not connected with God. Huh? God is धन्यवाद देने का मतलब क्या है? It is a reply to God for what we have received. In that sense, भजन संगीत 19 is a song of worship। जो बातें परमेश्वर से मिला उसको रिप्लाई दे रहा है, मतलब उसको धन्यवाद, उसकी हर एक चीजों के बारे में बोलते हुए धन्यवाद कर रहा है। सो वर्सेस, इट स्पीक्स अबाउट लॉ ऑफ द लॉर्ड, स्टैट्यूट्स ऑफ द लॉर्ड, प्रिसीप्ट्स ऑफ द लॉर्ड, कमांड्स ऑफ द लॉर्ड, फियर ऑफ द लॉर्ड, ऑर्डिनेंस ऑफ द लॉर्ड। ये क्या है?
What is mean by the law of the Lord? परमेश्वर का नियम, स्टैट्यूस ऑफ द लॉर्ड। भजन संगीता 119 में बहुत बार ये आया है स्टैट्यूस, उसका हिंदी मुझे पता नहीं, कुछ ढूंढ लेना। स्टैट्यूस ऑफ द लॉर्ड, Statutes नहीं है sir. The other is स्टैट्यूस नहीं, वो साइलेंट होगा। In other words, faithfulness of the Lord. Then the precepts of the Lord. भजन संगीता 119 का नीचे लिखा है सारे शब्दों का मतलब। This written in Psalm number 119 का डाउन पार्ट। Commands of the Lord, fear of the Lord, ordinance of the Lord. sir, वो सुनते थे। कौन सा? The repentance पूरे नीचे से, the repentance of Lord, YHWH. That is Yahweh. अभी तक पता नहीं। हर जगह पे लॉर्ड 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 करके लिखा है। वो परमेश्वर के बारे में, कौन से परमेश्वर है, वो पर्सनल रिलेशनशिप क्या है समझाने के लिए लिखा है करके लिखा। थियोलॉजिकल थीम्स, पॉइंट नंबर 1, रेवलेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेवलेशन, नेचुरल रेवलेशन एंड स्पेशल रेवलेशन। 1 to 6 is general revelation, 7 to 11 is special revelation. Natural and general revelation both are same. What is in the revelation? प्रकाशित वाक्य नहीं है, प्रकाशन जो परमेश्वर ने किया वो वाला। सो इस सृष्टि पे देखा तो क्या दिखाई देता है? सृष्टि दिखाई देता है, उसको सृष्टिकर्ता दिखाई देता है। So 2 types of revelation, Psalm number 19, general revelation and special revelation. The glory of God, through all these things, glory belongs to the role of the law. नियम का जगह क्या है हमारा जीवन में? ह्यूमन सिन एंड डिवाइन ग्रेस। कभी कभी एरर्स हो जाता है, लेकिन परमेश्वर हमको बचाएगा। So it has parallelism. For example, the heavens declare the glory of God. कौन सी वचन है? पॉइंट नंबर 1, वचन नंबर 1। Imagery and metaphor. Sound and rhythm. Sound and rhythm means this psalm is mostly used in public worship, and almost it is a almost नहीं, ये गाना ही है परमेश्वर की। हमारा गानों में ज्यादातर क्या करता है? हमारा गानों में कम है, इंग्लिश गीत में लिरिक्स ज्यादा क्या होता है? परमेश्वर को महिमा मिलने की जैसा होता है हमारा। जैसा अंतिम दिनों के अभिषेक कल वही गया था, अंतिम दिनों के आग की समान उतरा, अगर सच में आग गिरा तो क्या होगा? उनकी गीत में वही गाता है ना, सच में आग गिर गया तो कीबोर्ड जल जाएगा, गिटार गिर जाएगा, हम भी जल जाएगा। सो आई थिंक टुडेज इंग्लिश लिरिक्स ऑल्सो अदर वे। पुराना इंग्लिश गीत का लिरिक्स देखना, इन एवरी वे, जैसे लाइक ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, अमेजिंग ग्रेस, मतलब परमेश्वर के बारे में ज्यादा बोलने वाला जैसा गाना था पहले, हमारा भी था, आजकल तो नहीं। Psalm number 19 in a canonical context. What is meant by canonization? It has the connection with the celebration of creation, celebration of thanksgiving, that is Exodus 20, Genesis 1, Romans 1 verse 20, Deuteronomy chapter 6, Romans 10 verse 18, which means in all these verses it speaks about how God created this universe
And how and who is in authority and who has the authority over this creation? Who has the authority? God himself. And glory belongs to God. According to Jewish interpretation, when they sing this, they sing as a celebration of Torah. What is meant by Torah? That Panch book is known as, in English title, what is the title for the first 5 books? What's the meaning? The book of law. So in Jewish tradition, whenever they get a context of remembering the law of God, they sing this psalm as a remembrance of the law of God. For us also same, Christians also same. And for Christians we can take this psalm and we can read as a reply or during the name of worship, because it is a reply to the revelation of God. समझ आया नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल हमको कुछ थैंक्स गिविंग, कुछ ब्लेसिंग हमको मिला, वो कहाँ से मिला करके हमको पता नहीं है, तो हम किसको जाकर धन्यवाद करना है? उदाहरण काना का वहाँ शादी में दागरस तो मिला, कहाँ से मिला हमको पता नहीं, वो किसको धन्यवाद किया होगा? जो मेन मालिक था किसको धन्यवाद किया होगा वो मालिक ने? मेन मालिक के बारे में पूछ रहा हूँ, मेन मालिक को ही पता नहीं है कहाँ से अच्छा चीज आया, किसको धन्यवाद करना है? सो व्हेन आई रिसीव समथिंग, आई गेट द रेवलेशन फ्रॉम गॉड, इट इज गॉड हु गिव टू मी. सो व्हाट आई शुड गिव एज अ रिप्लाई? आई कैन ऑफर वर्शिप. व्हाट इज मीन बाय वर्शिप इन ओल्ड टेस्टमेंट सेंस? A connection, relationship सब छोड़कर in Old Testament, what do you mean by worship? Sacrifice. What do you mean by sacrifice? बलि, मतलब खुद का जीवन को बलिदान करना. अगर परमेश्वर से कुछ मिला तो मुझे मिला, ऐसा हिंदू धर्म में होता है ना, अगर परिवार में मिला तो मैं मेरा बच्चा का मुंडी को पूरा ये कर दूंगा करके कुछ वो लेते हैं ना, हाँ, बाल काटने का. So in a present context, it's also same. When we receive something from God, it also comes with the revelation of God. So thank God, praise Him, and remember all the things that He have done from the beginning of creation. Any doubt from Psalm number 19? Push out.